Hello class, today we will do chapter 11, force and pressure. So in this chapter we are going to learn about force, state effects and types of forces, explore various forces, describe the concept of pressure, explain the pressure exerted by liquids and describe atmospheric pressure. So let us start with the chapter. Hold a brick in the palm of your hand. The brick pushes your hand downward. In order to prevent the brick from falling down, you push the brick upward. तो ये बहुत ही ऐसी एक्टिविटी है जो आप आए दिन करते रहते होंगे अपने खेलने में, जब आप बाहर जाते हैं तब भी आप किसी भी भारी चीज़ को, इसमें ब्रिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप किसी भी भारी चीज़ को अपने हाथ में पकड़िए, क्या होगा, वो चीज़ आपके हाथ पर प्रेशर लगाएगी। जैसे कोई भी चीज़ आप अपने हाथ पर रखिए भारी, वो चीज़ आपका हाथ नीचे की तरफ ले जाएगी, तो आपको उसको उठाने के लिए अपने हाथ को नीचे से प्रेशर देना होगा, नीचे से फोर्स लगाना होगा, नीचे से पुश करना होगा, तब आप उस चीज़ को पकड़ पाएंगे। इन विलेजेस पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बाय पुलिंग अ रोप टाइट टू अ बकेट। When you kick a football, you push it harder. तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते रहते हैं। आप फुटबॉल को किक मारते हो तो आप उसमें पुश करते हो उस फुटबॉल को। इसके अलावा गाँव में जब कुएं से लोग पानी खींचते हैं तो भी उसको बड़ी ही मेहनत से और बड़ी ही खींच कर प्रेशर लगा के फोर्स लगा के खींचते हैं। When you squeeze a rubber ball, you push its surface inwards. When you strike a nail with a hammer, you are pushing the nail harder into the wall or wood. So, when a batsman hits a cricket ball, he pushes the ball with the bat. In a horse cart, the horse pulls the cart forward. To open or close a door, you either pull or पुश इट। तो देखो, आपको दरवाज़ा खोलना है तो भी आप या तो पुश करोगे या पुल करोगे। इसी तरीके से घोड़ा गाड़ी में क्या होता है, घोड़ा होता है वो पीछे की कार्ट को खींच रहा होता है। ओके, जब बैट्समैन उसके पास बॉल आती है और वो उसको बैट से मारता है तो भी उसको बैट पर काफ़ी प्रेशर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। So in all these examples, some kind of push or pull is involved. This pull or push is referred to as a force. So we can say that some kind of force is acting on these examples. So how does a force arise? A force arise कैसे होती है? Try to answer the following question. From where does a force come into play? You will observe that in all examples of force we have considered so far, we talk about two objects interacting with each other. Thus, we can say for a force arises due to the interaction between two or more objects. तो देखो, इसमें interaction होता है। किस तरीके से interaction होता है? आपने एक brick ली, उसको अपने हाथ पर पकड़ा, तो इन दोनों का interaction हुआ। इन दोनों का मतलब brick का और आपके हाथ का। इसी तरीके से जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो किसका इंटरेक्शन हुआ? बैट का और बॉल का। इसी तरीके से जब आपने फुटबॉल को किक की तो क्या हुआ? यस, तो भी इंटरेक्शन हुआ फुटबॉल का और आपके पैर का। तो जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए उन सब में हमने देखा कि इंटरेक्शन हुआ ऑब्जेक्ट्स का, तभी हम फोर्स लगा पाए, प्रेशर लगा पाए। Thus, we can say that a force arises due to the interaction between two or more objects. Let us look back at the examples given in the beginning of this chapter to understand this better. The brick exerts a downward force on the hand only when it is placed in the palm of the hand. Similarly, the hand exerts an upward force on the brick when it comes in contact with the brick. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप अपने हाथ में कोई भारी चीज़ रखो, वो जो चीज़ आपकी भारी होगी वो आपके हाथ पर नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी और आपको उसको बैलेंस कंडीशन में पकड़ने के लिए, आपको उसको बैलेंस रखने के लिए नीचे से अपने हाथ का जोर लगाना पड़ेगा, तभी तो आप उस चीज़ को होल्ड कर पाएंगे। To exert a force on the football, you need to kick it. The contact of your foot with the ball give rise to the force. Squeezing a ball involves an interaction between the ball and the hand. अब देखो, ये मैंने जस्ट अभी आपको बता के हुआ है कि जब हम रबर को स्क्वीज कर रहे हैं तो किसका इंटरेक्शन हो रहा है? हाथ का, बॉल का। A force is exerted on the nail the moment the hammer strikes it. The bat exerts a force on the ball the moment it comes in contact with the ball. The horse can exert a forward force on the cart only if the cart is tied to it.
We can exert the force on a door to open or close it only when we touch the door. Thus, we see that force arises due to interaction of two or more objects. Now, effects of force. Effect क्या होता है force का? So, in this section, we will learn about the effect of force on the shape and state of motion of the bodies through simple activities and experiences from our daily lives. Force can change the shape of an object. ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो आप किसी भी ऐसी चीज़ को पकड़िए जो बड़ी ही सॉफ्ट सी हो, रबर ले लीजिए या बॉल ले लीजिए, आप उस पर फोर्स अप्लाई करिए. इवन बलून ले लीजिए, आप उस पर फोर्स अप्लाई करिए, आप उसे अपने हाथ से दबाने की कोशिश करिए. क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. आप जब किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. जैसे कि आप सोफ़ा पर बैठते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी डेली लाइफ से. जैसे कि आप रोटी को बेलते हैं, आप फोर्स लगाते हैं, वो गोल हो जाती है. ओके, शेप चेंज हो जाता है. इसके अलावा आप बलून की शेप चेंज कर सकते हैं उस पर प्रेशर लगा के. रबर बैंड जो मम्मा बालों में लगाती हैं, ओके, उसका भी आप शेप चेंज कर सकते हैं. आप उसे पकड़ के खींचिए, उसका शेप बड़ा हो जाएगा. शेप ऑफ द स्प्रिंग चेंजेस व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड. स्प्रिंग सब लोगों ने देखा होगा, आपके पेन में भी होता है, आपके घर में भी चीज़ों में स्प्रिंग होती है. सो स्प्रिंग इज अ काइंड ऑफ थिंग, इस तरीके से होती है. आप इस पर इस तरीके से प्रेशर लगाओगे, तो क्या होगा, इसका शेप छोटा हो जाएगा. और जब आप इसे दोनों तरफ से पकड़ के खींचोगे तो इसका जो शेप है वो बड़ा हो जाएगा. इसके अलावा जब आप सोफे पर बैठते हैं तो आप प्रेशर लगाते हैं. भाई जब आप बैठ रहे हैं तो अपने वजन के संग बैठ रहे हैं, वजन का प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है, तो क्या होता है, सोफा वहाँ से दब जाता है. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट इफ़ यू अप्लाई फोर्स देन द ऑब्जेक्ट्स विल चेंज देयर शेप. इसके अलावा फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. तो जो मोशन अगर कोई चीज़ कर रही है तो भी आप अगर उस चीज़ पर फोर्स अप्लाई करो तो क्या होगा, यस, वो मूवमेंट करने लगेगी. मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. ये एक्टिविटीज़ आप पढ़कर देखिएगा, ये एक्टिविटीज़ आप पढ़िएगा. मैं आपको आपकी डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरीके से आप फोर्स से स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं. चलिए, अब एक काम करिए, आप घर में इस समय रह रहे हैं, आपके घर में बॉल होगी, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट होगा. ऐसा कुछ मत कर देना जिसकी वजह से डांट पड़ जाए, पर एक बॉल ले लीजिए या एक हल्का सा कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए. वो चीज़ रखी हुई है, भाई आप चलते फिरते आ रहे हैं, आपके यहाँ पर बॉल रखी हुई है, आप आए और आपने इस बॉल को किक कर दिया. ठीक है, किक कर दिया. क्या किया आपने, यस, आपने अपने पैर से फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, क्या वो बॉल उसी जगह रखी रही? नहीं, वो बॉल मूव करने लगी. यस, देखिए आपने ये जो बॉल रखी थी ये रेस्ट पोजीशन पर थी. रेस्ट का मतलब ये नहीं ये आराम कर रही थी. जब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट इंसान हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपकी कोई चीज़ हो सकती है, ऑब्जेक्ट एनिमल्स हो सकते हैं. ओके, सो ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए. इन फिजिक्स जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारे पास बॉल है, आराम से रखी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, हिलडुल नहीं रही है. जब ये अपनी इस पोजीशन में है तो हम इसको मानते हैं इसकी रेस्ट पोजीशन, यानी ये रेस्ट पोजीशन पर है. आप आए, आपने इसको किक कर दिया, ये मूव करने लगी. अब आप जिस डायरेक्शन में इसको किक करेंगे ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगी. तो देखिए हो गया ना भाई, आपने मोशन को चेंज कर दिया. मोशन का मतलब ये नहीं है कि वो पहले से ही कहीं मूव कर रही थी और आपने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया. मोशन का मतलब ये भी है कि आपने रेस्ट पोजीशन से जो चीज़ रुकी हुई थी आपने फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया और वो चीज़ मूव करने लगी. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं फुटबॉल का. फुटबॉल में बॉल ऑलरेडी मूव कर रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है. कैसे जा रही है? जब आप उसको किक कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स उसको किक कर रहे हैं. ओके, तो आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. ओके, तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं. तो देखिए हमने क्या सीखा इसमें,
चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस ऑफ कोर्स फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने रबर बैंड का एग्जाम्पल लिया, हमने सोफा का एग्जाम्पल लिया, हमने चपाती का एग्जाम्पल लिया। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें अपनी शेप को चेंज कर रही थी। इसके अलावा फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट टू मूव, कोई चीज़ रेस्ट में है और आप उस चीज़ पर फोर्स अप्लाई करो तो वो चीज़ मूव करने लगेगी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल फुटबॉल वाला एग्जाम्पल हो गया जो मैं बात कर रही हूँ, ये लास्ट वाले की। ये देखिए ये लास्ट वाला ये इस तरीके से आपका फुटबॉल का एग्जाम्पल हो गया कि कोई चीज़ ऑलरेडी मूव कर रही है और आप बार बार उसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। वो चीज़ अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। भाई आप बॉल यहाँ पर है, आपने किक मारी इधर, वो यहाँ चली गई, अब इधर पहुँची, इधर वाले प्लेयर ने फिर से किक मारी, ये इधर चली गई, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई बॉल है, हम मान लेते हैं आप उसे धीरे 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 मार रहे हैं, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो कम है। अब आपको लगा कि नहीं मुझे तो बहुत तेज़ मारनी है क्योंकि मुझे गोल करना है फुटबॉल कोर्ट में, तो आप क्या करेंगे, इस बॉल को बहुत ही तेज़ी से हिट करेंगे। जब आप इस बॉल को बहुत तेज़ी से हिट करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये बहुत जल्दी आपके गोल पोस्ट तक पहुंच जाएगी। ओके, सो क्या क्या कर सकते हैं हम फोर्स से? हम फोर्स से शेप चेंज कर सकते हैं, हम फोर्स से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम किसी रेस्ट पोजीशन से मूव वाली पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। इसके अलावा हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि ये फोर्स आखिर है क्या, कि जो हम जोर लगा रहे हैं, हम फोर्स प्रेशर बात कर रहे हैं, आखिर फोर्सेस होती क्या है और किस टाइप की होती हैं? तो देखिए फोर्सेस दो तरीके की होती हैं। दो तरीके की कैसी? कि आपने चपाती को, जो चपाती की आपकी मम्मा ने लोई बनाई थी, जो बॉल बनाई थी छोटी सी, ओके, उसको जब बेलन से प्रेशराइज किया तब वो चपाती में कन्वर्ट हुई। ऐसा ही हुआ था? क्या वो अपने आप हो गई थी बिना टच किए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या, कि ये एक बॉल रखी है, भाई ये बॉल रखी है मेरी, और मैं सोचूं कि मैं इसे देखती रहूं और ये मूव हो जाए? नहीं हो सकती। मुझे इसको हाथ से या तो मूव करना पड़ेगा या मुझे इसे पैर से किक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ को टच करना पड़ेगा। ओके, तभी मैं उसमें फोर्स अप्लाई कर सकती हूँ। तो जिन फोर्सेस में मुझे फोर्स अप्लाई करने के लिए टच करना पड़े, फिजिकल अपीयरेंस हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। और जिसमें हमें टच ना करना पड़े और फोर्स अप्लाई हो जाए वो बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम किसी चीज़ को सिर्फ देख लें या कोई ऐसी कंडीशन कर लें जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को छुए ना फिर भी उसमें मूवमेंट हो जाए? तो ये हम पढ़ेंगे जब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। ओके, सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जस्ट मैंने भी आपको बताया, ऐसे फोर्सेस, फोर्स अप्लाई करने का तरीका जिसमें दो बॉडी का फिजिकल इंटरेक्शन हो, यानी दो चीज़ें आपस में टच हो रही हो। So in all the examples discussed so far, the interacting objects have to be in contact with each other for the force to come into play. Such forces are called contact forces. So we can say that contact forces are the types of forces that result when the interacting bodies are in physical contact with each other. जितने भी examples थे भाई, आप ऐसा नहीं है कि सोफे पर ना बैठे हों और सोफा दब जाए, पॉसिबल नहीं है। जब आप सोफे पर बैठेंगे तभी वो सोफा दबेगा, जब आप बॉल को टच करेंगे, बॉल को किक करेंगे, तभी वो बॉल मूवमेंट करेगी। जब आप जो बॉल बनाई है मम्मी ने आटे की, जब मम्मी उसको बेलन से प्रेस करेंगी तभी वो चपाती में कन्वर्ट होगी। सो अब देखो जितनी भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए उसमें वो जो दो बॉडीज़ की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे आप बैठे सोफे पर तो दो बॉडीज़ की बात हो रही है, सोफ़ा और आप, तो इन दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ, आपने सोफे को आप सोफे पर बैठे तभी वो दबा। ओके, कॉन्टैक्ट हुआ ना, बिना टच किया आप ऐसा नहीं कर सकते। सो मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स क्या होती है? वो कोई भी ऐसी फोर्स जो आप अपनी मसल्स को यूज़ करके अप्लाई करते हैं। ओके, जैसे कि भाई मैंने एक दरवाजे को खींचा, मैंने अपनी मसल्स यूज़ करी क्योंकि मैंने उसको पुल किया, फोर्स लगाया, मैंने दरवाजे को पुल किया। किस तरीके से किया? हाथ से पकड़ कर किया, अपनी मसल्स के यूज़ से किया। मैं किसी दरवाजे को पुश करूं यानी कि दबाऊं, क्या होगा? यस, वो दरवाज़ा खुलेगा या बंद होगा, ऑफकोर्स यही होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने हाथ से उस दरवाजे को
पुश किया। क्या यूज किया? मस्कुलर फोर्स। ओके, सो मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश, पुल or lift objects is produced by the muscles in our body and hence it is called muscular force. This is the same force that is used when we move or bend our body parts. To exert muscular force on an object, our body has to be directly or indirectly in touch with the object. Thus muscular force is a contact force. तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल, मुझे लगता है ये तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये बताइए, ये एक दरवाज़ा है, मुझे इसको धक्का देना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसको टच ना करूं और ये अपने आप इसमें धक्का लग जाए और ये खुल जाए? नहीं है पॉसिबल। या तो मुझे इसे पुश करना पड़ेगा या मुझे इसे पुल करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, आप बोलोगे नहीं मैम बिना हाथ के भी मैं ऐसे करके कंधे से खोल सकता हूँ इसको। येस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट उसमें भी आपको दरवाजे को टच तो करना पड़ा ना। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप उसको टच ना करो और वो पुश या पुल हो जाए। ओके, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया? मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स कैसी है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। So like humans, animals also use muscular force. They help us in various activities such as plowing, pulling heavy loads and transportation. To carry out these activities, animals have to be make use of their muscular force. तो एक घोड़ा गाड़ी है, अगर मैं घोड़ा गाड़ी की बात करूं, उसमें जो घोड़ा है वो पीछे की कार्ट को खींच रहा है, तो भाई कार्ट में और घोड़े में कांटेक्ट है, वो अपनी मस्कुलर फोर्स को यूज़ कर रहा है उस कार्ट को खींचने के लिए। अब दूसरी जो कांटेक्ट फोर्स है वो है आपकी फ्रिक्शन। सो कैन यू गेस व्हाट हैपन्स व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर और अ साइक्लिस्ट स्टॉप्स पेडलिंग द साइकिल? ग्रेजुअली द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेज एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। आपने क्या किया? एक बॉल ली, उसको किक कर दिया एक बार। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपने किक किया तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, फिर वो दूर जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और दूर जाएगी और कम हो जाएगी और दूर जाएगी और कम हो जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी होगी जहां पर वो बॉल पूरी तरीके से रुक जाएगी। सो डू यू नो व्हाट कॉजेज द बॉल एंड द साइकिल टू स्टॉप? वी हैव लर्न्ड दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। Thus, there must be some force that might have stopped द मूविंग बॉल। तो देखो मैंने अभी आपको बताया हर चीज़ हर चीज़ जो मूव करती है, हर चीज़ जो रुकती है, उसका रीज़न होता है फोर्स। जब आपने किसी बॉल को हिट कर दिया और वो बॉल मूव कर रही है, थोड़े टाइम बाद वो रुक गई, जबकि उस पर किसी ने कुछ नहीं किया, ना किसी ने उसको रोका, ना उसने किसी को उसके रास्ते में आया, फिर भी वो बॉल रुक गई। क्यों हुआ ऐसा? भाई कोई ना कोई फोर्स तो ऐसी होगी जो उस पर काम कर रही है, जिसकी वजह से वो बॉल पहले स्पीड में थी, जब आपने किक मारी तो वो तो आपने किक मारी इसलिए स्पीड में थी, पर कोई ना कोई फोर्स तो ऐसी होगी ना कि जब आपने किक मार दिया तो उसके बाद वो मूव करती हुई धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हुई और धीरे धीरे कम स्पीड होने के बाद वो रुक गई। तो कौन सी फोर्स है वो है आपकी फ्रिक्शन। इट अराइजेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ये कब होती है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन तब होता है जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है। जैसे कि आप सब सर्दियों में, अब सर्दियाँ चल रही हैं, देखिए आई एम वेयरिंग द स्वेटर्स, दैट इज, तो भाई सर्दियाँ तो है, तो आप सब क्या करते हैं जब ठंड लगती है तो अपने हाथों को इस तरीके से रब करते हैं, और रब करने से क्या होता है? यस, क्या होता है रब करने से? ये रब करने से आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? ये जो मेरे दोनों हाथ हैं ये एक दूसरे पर मूव कर रहे हैं ना। अब जैसे बॉल भी तो मूव कर रही है, किसके ऊपर? फ्लोर के ऊपर, यानी कि सरफेस के ऊपर। तो बॉल और सरफेस के बीच में क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। It always acts in the direction opposite to the direction of motion of the object. This is the reason why moving objects slow down and stop. Since friction arises between two objects in contact, it is also a contact force. अब इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आप जितने अच्छे शूज़ लाएंगे रनिंग के लिए, उसमें ज़्यादा स्पाइक्स निकले होंगे नीचे की तरफ ज़्यादा उसमें स्पाइक्स निकले होंगे, नीचे से बड़ा खुरदुरा सा होगा। क्यों होता है ऐसा? वो चिकना क्यों नहीं होता? उसका रीज़न ये है कि जब आप मूव करेंगे, जब आप दौड़ेंगे फील्ड में, आप मूव करेंगे, आप खेल रहे होंगे, तो आप गिरेंगे नहीं स्लिप होकर। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आप स्केट्स लेकर आइए, ओके, स्केट्स, रोलर स्केट्स जो होते हैं,
एक ज़मीन ऐसी है जो कि जिस पर पत्थर है बहुत सारे, आप इन पर मूव करने की कोशिश करिए, कैसा होगा? रफ सरफेस है ना, बहुत सारे पत्थर हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, गंदगी सी है, दिक्कत होगी ना रोलर स्केट से चलने के लिए? बिल्कुल होगी। एक होती है भाई आपकी बिल्कुल इतनी चिकनी सी रोड है और आप इस पर बिल्कुल फिसलते चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये इसमें ये जो सरफेस है ये इतना रफ नहीं है, ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है। ओके, तो मुझे लगता है अब आपको थोड़ा सा क्लियर तो हो ही गया होगा फ्रिक्शन। बाकी आप एक बार और रीड करिएगा तब आपको फ्रिक्शन फोर्स क्लियर होगा। नो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, अब ऐसी फोर्सेज जिसमें हमें किसी चीज़ को टच ना करना पड़े, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, फिर भी वो चीज़ मूव कर जाए, डायरेक्शन चेंज कर दे, शेप चेंज कर दे। ओके, यानी कि हम वो फोर्स महसूस तो कर पा रहे हैं पर हम उस चीज़ को टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो फोर्स लग रही है। ऐसी फोर्सेज होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, जिसका पहला एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स exerted by a magnet on another magnet or magnetic material। तो देखिए ये एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी मुझे लगता है आप बच्चों ने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में की ही होगी। आप दो मैग्नेट्स को लीजिए, दो मैग्नेट्स को लीजिए और दो मैग्नेट्स को टच मत कराइए, पर टच करने से पहले ही थोड़ा सा पास में रखिए। क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, पर कांटेक्ट नहीं है, फोर्स लग रहा है पर कांटेक्ट नहीं है। भैया आपने दो मैग्नेट ली, इनको थोड़ा सा दूरी पर रखा, अब देखो ये इसे खींचेगी, ये इसे खींचेगी, फोर्स तो लग रहा है पर क्या वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है? नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन ईच अदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जब दो चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। कंघा लीजिए, आप सब घर में बैठे हैं इस समय, कंघा उठाइए, कॉम्ब उठाइए, प्लास्टिक का कुछ भी अगर मिल जाए वो उठाइए और अपने बालों से रब करिए। यस, रब करिए, काफ़ी देर तक रब करिए और फिर उसको अलग करिए। क्या होगा? आपके जो बाल हैं वो उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होंगे, भाई चिपकते चले जाएंगे ना। क्यों है ये रीज़न? क्योंकि जब आपने उसको रब किया ना तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए और इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के बाद उन दोनों में अट्रैक्शन शुरू हो गया। करके देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यही आपकी एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी भी आपकी यही है और आपको ये करके भी देखना है, इससे आपको क्लियर होगा। ओके, नाउ in the above activity, as the comb was able to attract paper from a distance, it implies that electrostatic force is a non-contact force। इन्होंने comb और paper लिया है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया comb और hair का, उसको रब करिएगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यस, सो इट इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन अस। सो व्हाई डज अ बॉल दैट इज थ्रोन अप कम डाउन? आप बॉल को ऊपर फेंको फिर भी वो नीचे क्यों आएगी? वाटर फ्लो करता है ऊपर से नीचे की तरफ। भाई आपकी जो घर में टंकी है वो ऊपर ही क्यों होती है, नीचे क्यों नहीं होती? अगर नीचे होगी तो क्या पानी नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रीज़न यही है, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे आएगा ना कि ऊपर जाएगा। वाई डू फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट? भाई प्लांट, भाई आपका जो फ्रूट है वो गिरा या लीव्स गिरी प्लांट से, तो वो नीचे जाएंगी या ऊपर जाती हैं? ये सब कुछ नीचे आएंगी। So the answer to all the above questions lies in the fact that the earth pulls all objects towards itself with a force. This force is called gravitational force. As this force exerted by the earth can act from a distance, it is a non-contact force. अब देखो बॉल है, ये ग्राउंड है, ये बॉल है, आपने इस बॉल को फेंका और ये नीचे की तरफ आई। अब इतने डिस्टेंस में क्या ये वाला जो सरफेस है और ये जो बॉल है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं टच कर रहे, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रही है ना, फिर भी फोर्स तो लग रही है, तभी तो ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये कैसी फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी इनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है। Now, exploring forces. What happens when more than one force is acting on a body? Consider the example of a game of tug of war. In this game, two opposite teams pull a rope in opposite directions.
A ribbon is tied at the middle of the rope and the ground is marked accordingly. The team which is able to pull the ribbon towards itself wins the game. Here the rope experiences two forces which are acting in opposite directions. To understand the motion of the rope, let us look at an activity. एक्टिविटी से पहले मैं आपको ये एक बहुत अच्छा सा एग्जाम, ये पूरा जो उन्होंने बताया इसको आपको डायग्राम से समझाती हूँ. टग ऑफ वॉर खेलते हैं. टग ऑफ वॉर में क्या होता है, यहाँ पर बच्चे होते हैं, समझ लो यहाँ पे मैंने 4 बच्चे ले लिए. ओके, यहाँ पर 4 बच्चे ले लिए, चौथा बच्चा ऐसे करके बना देती हूँ मैं. इनके बीच में मैंने एक रोप दे दी कि भाई ये वाली रोप का हिस्सा तुम पकड़ के खींचो और ये वाला तुम पकड़ के खींचना. बीच में मैंने एक रिबन लगा दिया और ये जो ग्राउंड है इस पर मैंने ये टिक लगा दिया. अब ये रिबन जिस तरफ जाएगा वो टीम जीत जाएगी. अब इस पर 2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. कैसे? एक फोर्स जो ये वाली टीम लगा रही है रोप पर और एक ये फोर्स जो कि ये वाली टीम लगा रही है. दोनों लगा रही हैं, दोनों अपनी तरफ रस्सी को पकड़कर खींच रही हैं, दोनों को ही टीम को जीतना है. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, यस, इसमें 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं एक साथ. यस, तो एक कंडीशन हो गई जिसमें जो टीम्स थी वो एक ही रोप को दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे थे. अब देखिए ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप करके देखिएगा. इसका मैं आपको जो रिजल्ट निकलेगा वो आपको समझा देती हूँ. इफ़ 2 फोर्सेज आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स विल बी द सम ऑफ द 2 फोर्सेज. चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. आप 2 बच्चे हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं. मैंने आपको बोला कि बेटा ये एक जो पत्थर है इसको उठा के रख दीजिए वरना इससे किसी को चोट लग जाएगी. ठीक है, आपने बोला मैम ये पत्थर बहुत भारी है, तो मैंने आपको क्या बोला कि ऐसा करिएगा बेटा, इसको ना रस्सी से बांधिए, इसको रस्सी से बांधिए और इसको दोनों पकड़ के खींचिए. अब क्योंकि आप दोनों दोस्त हो, आप दोनों मेरी मदद कर रहे हो, तो आप इसको उधर की तरफ खींच के ले जाओगे, बिल्कुल ले जाओगे. मैं मान लेती हूँ आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तब ये ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा, ये पत्थर हट पाएगा वरना किसी को चोट लग जाएगी. अब टोटल फोर्स कितना हो गया, मैं न्यूटन इसलिए बोल रही हूँ कि फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं. ठीक है, न्यूटन इसकी यूनिट है. जैसे कि हम बात करते हैं डिस्टेंस की किलोमीटर में, अगर हम दूध लेने जाते हैं तो लीटर में. इसी तरीके से जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम न्यूटन एन यूज़ करते हैं. तो मैंने आपको बोला बेटा इसमें ज़ोर लगाइए, इसको दोनों खींचिए मिलकर पकड़कर, तो ये खिंच जाएगा. ठीक है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका मैं ये चेंज कर लेती हूँ. ओके, तो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इन्होंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया. टोटल फोर्स कितना हो गया, 20 न्यूटन. क्यों? क्योंकि आप दोनों मिलके एक ही जगह तो फोर्स लगा रहे हो, आप दोनों एक ही चीज़ को खींच रहे हो, खिंच जाएगी. आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, टोटल फोर्स कितना लग गया, 20 न्यूटन. आप दोनों मिलके इस काम को अच्छे से कर सकते हो और मेरी हेल्प कर सकते हो. पर आप दोनों में हो गई लड़ाई, आप दोनों में होगी लड़ाई. नहीं मैम इसको तो, ये बच्चा बोला कि मैम इसको तो मैं हटाऊंगा, ये बोला नहीं मैम इसको तो मैं हटाऊंगा. क्या हुआ, रस्सी बांधी, आप इधर की तरफ खींच रहे हो, आप इधर की तरफ खींच रहे हो. आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आप 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो. भाई देखो ये ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, 10 ज़्यादा है 9 छोटा है, तो फोर्स से ज़्यादा कौन लगा रहा है, ये बंदा ज़्यादा लगा रहा है, ये वाला बच्चा ज़्यादा लगा रहा है. कितना ज़्यादा लगा रहा है, 1 न्यूटन. कैसे निकाला हमने, माइनस करके. अब मैं आपको बताती हूँ कि इन लाइंस का मतलब क्या है. जब भी फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा होता है, यानी जब आप दोस्त थे और आप मेरी मदद कर रहे थे, तो जब आप एक तरफ पत्थर को खींच रहे थे दोनों मिलके, तो आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, तो मैंने आपकी फोर्स को ऐड कर दिया. पर जब आप में लड़ाई हो गई, आप गुस्सा हो गए कि नहीं मैं उठाऊंगा, नहीं मैं उठाऊंगा, तो क्या हुआ, आपने दोनों तरफ फोर्स लगाया और दोनों तरफ का फोर्स मुझे क्या करना पड़ा, माइनस. क्यों? क्योंकि आप इधर फोर्स लगा रहे हो, आप इधर फोर्स लगा रहे हो. तो जब डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो जो आपका फोर्स है उसको माइनस करना होता है, सो डिफरेंस निकलता है. द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स.
In addition to the magnitude, a force always has a direction. The direction of force is away from us when we push something and we pull something. The force acts towards us. तो देखो मैग्नीट्यूड तो होता ही है भाई, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो या 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो. इसके अलावा इसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है. डायरेक्शन किस तरीके से मैटर करता है? जब आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो तो फोर्स कहाँ लग रहा है? आपसे अपोजिट लग रहा है. भाई सामने की तरफ दरवाज़ा खुल रहा है तो किधर लग रहा है? आपका अपोजिट डायरेक्शन में. जब आप किसी चीज़ को पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, तो क्या हो रहा है? आपकी तरफ लग रहा है फोर्स. ओके, तो देखिए अब ये पूरा एनालिसिस दे रखा है टग ऑफ वॉर का. जब आपकी टीम्स बनी हुई थी और आप एक रस्सी को पकड़कर खींच रहे थे. ओके, तो अब आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या होता है जब आप टग ऑफ वॉर खेलते हैं. नाउ यूनिट ऑफ फोर्स. द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. तो देखिए ये मैं आपको काफ़ी बार पहले भी बता चुकी हूँ, हम फोर्स को मेज़र करते हैं न्यूटन में. और ये जो न्यूटन नाम मिला इसे, ये मिला है सर इसैक न्यूटन से. ये एक साइंटिस्ट थे. ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 9.8 न्यूटन. 9.8 हो गया मैग्नीट्यूड कि आप 9.8 का फोर्स लगा रहे हैं. और फोर्स लगा रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? इसके पीछे एन लिखा हुआ है यानी कि न्यूटन. अब हम बात करेंगे प्रेशर की. द इफेक्ट दैट अ फोर्स हैज़ ऑन अ सरफेस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स: the amount of force applied and the area it is pressing on. Let us perform an activity to understand this. इसके लिए हमें ये एक्टिविटी करनी होगी, तो चलिए करते हैं. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एम लिखना होता है कि हम इस एक्टिविटी को क्यों कर रहे हैं. To demonstrate that the effect of force depend on the area over which the force is applying. Now things required. आपको क्या चाहिए? 2 थंब पिन्स चाहिए, एक शार्प पॉइंटेड पिन चाहिए, और एक आप गंदी सी पिन ले लेना जिसका ज़्यादा शार्प पॉइंट ना हो, ज़्यादा पेनी ना हो. एक पॉइंटेड लीजिएगा, अच्छी वाली पिन लीजिएगा, और एक थोड़ी सी कम खराब अच्छी वाली लीजिएगा, खराब सी लीजिएगा. 2 सॉफ्ट बोर्ड्स लीजिएगा. मेथड: टेक द पिन्स एंड प्रेस देम ऑन अ सॉफ्ट बोर्ड विद इक्वल फोर्स. आपने दोनों ही पिन्स को प्रेस करने की कोशिश करी बोर्ड पर. विच पिन पियर्सेस थ्रू द सॉफ्ट बोर्ड. अब आप खुद बताइए भाई, मैंने 2 पिन ली, एक ये रही, एक ये रही. इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल पैना है, बहुत तेज है, एक थोड़ा सा खराब है. दोनों पर फोर्स लगाइए, क्या होगा? यस, जो पैना वाला है वो अच्छे से अंदर चला जाएगा. दो both the pins experienced the same force. The pin with the pointed side pierces through the soft board while the pin with the flat tip does not. Thus the same force has different effects on the two pins. तो देखो फोर्स आपने सेम लगाया भाई, आप उतनी ही ताकत एक पिन पर लगा रहे हो, उतनी ही ताकत दूसरी खराब वाली पिन पर लगा रहे हो, फिर भी पियर्स कौन करेगी? अच्छी वाली पिन करेगी. This is because the area of contact between the tip of the pin and the board is different in the two cases. The area of contact is much smaller on the case of a pin with the pointed tip. देखो आपकी जो पिन है जब वो बहुत ज़्यादा पेनी है तो उसका जो लास्ट वाला हिस्सा है वो बहुत छोटा है, जबकि जो आपकी दूसरी पिन है वो घिसी हुई है, थोड़ी सी ख़राब है, उसका जो नीचे का एरिया होगा जहाँ से वो आप उसे प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो कैसा होगा? थोड़ा सा मोटा सा होगा. तो जिसका एरिया कम होगा उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और जिसका एरिया ज़्यादा होगा उस पर प्रेशर कम पड़ेगा. The above activity shows that the effect of force depends on the area over which the force is acting. The effect of force is measured by a quantity called pressure, which may be defined as force acting on a unit area on a surface. तो प्रेशर होता क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला लर्न करिएगा. देखिए प्रेशर होता है फोर्स. आप कितनी फोर्स लगा रहे हो, कितनी ताकत लगा रहे हो और कितने एरिया पर लगा रहे हो. ओके, नाउ प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. तो देखिए इसमें से आपको पता चलेगा एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम होगा. इसको लर्न कर लीजिएगा, इसको मैं आपको समझा भी रही हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अच्छे से करिएगा. भाई आप एक छोटा सा पत्थर लो और इस पर प्रेशर लगाओ, मूव कर जाएगा. एक बड़ा पत्थर लो, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, तभी वो वहाँ से होगा. Okay, so the pressure is inversely proportional to the area of contact. Therefore, the smaller the area of contact, the larger will be the pressure exerted. भाई आपको बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ेगा तब भी ये हिले ना नहीं हिले नहीं पता. ये जो है छोटा सा, इस पर आप प्रेशर लगाओगे, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे ज़्यादा मूव करेगा. इसका एरिया बड़ा है,
इस पर प्रेशर उतना ही लगाओगे, कम मूव करेगा। ओके, तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ही प्रेशर कम। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो देखो इसकी यूनिट क्या है हमारी, देखिए हम बिल्कुल भी इसको अभी देखेंगे भी नहीं कि ये क्या लिखी है, हम अपना फॉर्मूला देखेंगे और डिराइव करेंगे अपनी खुद की यूनिट। हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला था वो क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन। एरिया हम किस में निकालते हैं, एरिया निकालते थे ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया हम किस में निकालते थे, मीटर स्क्वायर में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई इसकी यूनिट। इसको नॉर्मल जो हम बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं पास्कल। क्या बोल सकते हैं, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल। तो पास्कल है क्या, 1 Pascal is the pressure that results from the action of 1 Newton of force acting on a unit area. Now applications of pressure. Cutting instruments like knives and scissors have sharp edges. This is because sharp edges have less area of contact. आप एक चाकू लीजिए, बहुत पैना लीजिए, उससे आप एक एप्पल को कट करिए, और आप एक दूसरा चाकू लीजिए जो थोड़ा सा खराब हो रखा हो, उससे एप्पल को कट करिए। ये बताइए आपको किस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अच्छे वाले नाइफ पर या गंदे वाले नाइफ पर। गंदे का मेरा मतलब वो ब्लंट है, वो अच्छा नहीं है। यस ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा जो आपका खराब वाला चाकू है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। और जो आपका पैना वाला चाकू है वो देखा कितनी धार होती है, कितनी पतली सी ऐसे होती है, तो उसका एरिया क्या है, कम। इट इज़ ईजियर टू हैमर अ शार्प नेल इन टू अ वॉल। द शार्प एज हैज़ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस रिजल्ट्स इन अ लार्ज प्रेशर बीइंग क्रिएटेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो द नेल ईजिली एंटर्स द वॉल. जब आप हथौड़े से किसी भी कील को ठोक रहे होते हो दीवार पे, तो जो अच्छी वाली कील होगी वो आसानी से अंदर चली जाएगी, जो खराब कील होगी वो नहीं जाएगी. Potters put a round piece of cloth on their head. The potters carry heavy loads on their head. The cloth increases the area of contact between the head and the load. This way they reduce the pressure on their head, which helps them to carry the load. तो देखिए इसमें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉटर का. हम एक एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ से ले लेते हैं. आप देखिएगा जब भी कोई भारी सामान अपने सिर पर ले जाएगा, जैसे कोई लेबर है उसको ईंटें अपने सिर पर रखकर ले जानी है, या उसको कोई अपने सिर के ऊपर कोई कट्टा रख के ले जाना है सीमेंट का, वो क्या करता है, ऐसे गोल सा रखता है ना अपने सिर पे, है ना, कट्टे का ही बना के वो गोल सा रखते हैं. तब उसके ऊपर आप ईंट रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं होता. क्यों, क्योंकि आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम लगेगा. ओके, इसके अलावा एक और आपको दे रखा है, आपकी जो बैग की जो स्टेप होती है, जो आप स्कूल बैग लाते हैं उसकी जो स्टेप होती है वो देखा है कितनी मोटी होती है. जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतना ही भारी सामान आप आसानी से कैरी कर सकते हैं. अगर वो पतली होगी तो क्या होगा, आपके कंधे में वो गड़ जाएगी. We find it difficult to walk on sand, but camels walk easily on it. तो कैमल्स आसानी से रेत पर चल लेते हैं और हमें बड़ी दिक्कत होगी. क्यों, क्योंकि हमारे तो पैर रेत में बिल्कुल धंस जाते हैं. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप देखिएगा. कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद अपने लॉजिक से रीड करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो ये और ये एग्जाम्पल्स आप खुद रीड करेंगे और आप रिलेट करेंगे प्रेशर और एरिया के बेसिस पर इन्हें. Now pressure exerted by liquids. Yes, liquids भी pressure लगाते हैं. So liquids have weight and so they exert pressure. भाई liquids में वजन तो होता है तभी तो आप नापते हैं. आप पानी को या दूध को कैसे नापते हैं, दोनों ही लिक्विड है, लीटर में किलो में नापते हैं ना. 2 किलो दूध दे दो, 3 किलो दूध दे दो, 5 लीटर पानी दे दो, वजन होता है ना उसमें. जितना ज़्यादा पानी लोगे उतना ही वजन उसका बढ़ता जाएगा, तो फिर वो प्रेशर तो लगाएगा. अब इसके लिए ये एक्टिविटी हम करके देखते हैं. वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द प्रेशर एक्सर्टेड एट द बॉटम डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम. तो ये हमारी एक्टिविटी है जिसमें हम देखेंगे कि जो वाटर है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा. दूसरी बात, जितना ज़्यादा गहराई होगी उतना ही नीचे प्रेशर ज़्यादा लगेगा बॉटम पर. किस तरीके से, जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी, जितना ज़्यादा आपका जो पानी है, ये बकेट है, जितना ज़्यादा पानी होगा, जितना जो आपका कॉलम है वो ज़्यादा होगा, आपकी जो कॉलम है उसकी हाइट ज़्यादा होगी, उतना ही बेस पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा.
सो ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब विद ओपन एंड्स, बलून एंड वाटर, ये चीज़ें आपको लेनी है। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब एंड क्लोज वन ऑफ इट्स एंड विद अ बलून। आपने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लिया और बलून से उसको एक तरफ से बंद कर दिया। होल्ड द ट्यूब फ्रॉम द मिडल ऑन अ वर्टिकल पोजिशन सो दैट इट्स ओपन एंड एट द टॉप एंड द बलून एट द बॉटम। देखो आपने क्या किया, ये आपने ग्लास क्या लिया और नीचे बलून लगा दिया। अब आपने क्या किया, उसमें पानी भरना शुरू किया। So pour more water to fill half of the tube. Record the observation. Add more water to fill about 3/4 of the tube. Again record the observation. As water is added to the tube, the balloon starts to bulge. जितना ज़्यादा आप ऊपर से पानी डालते जाएंगे इसमें, उतना ही ज़्यादा बलून का साइज बढ़ता जाएगा। क्यों? The bulge of the balloon represents the pressure exerted by water. क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो बलून के सरफेस पर प्रेशर लगा रहा है, इसी की वजह से तो बलून का साइज बढ़ रहा है। द इंक्रीज्ड बल्ज इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन द प्रेशर। दिस मीन्स द प्रेशर ऑन द बलून इंक्रीजेज विद द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम अबव इट इंक्रीजेज। जितना ज़्यादा आप इसमें पानी डालते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बलून पर पड़ता जाएगा। इवन ये एक एग्जाम्पल भी है कि अगर आप स्विमिंग पूल में कभी गए हों तो स्विमिंग पूल पर ऊपर ऊपर तैरना प्रेशर नहीं लगेगा, जितना ज़्यादा आप स्विमिंग पूल में नीचे जाते जाएंगे आपको प्रेशर महसूस होता जाएगा। अब हम करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। सो गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर लाइक लिक्विड्स। किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं गैसेस, चलिए देखते हैं। होल्ड अ मेडिसिन ड्रॉपर इनसाइड अ ट्रांसपेरेंट बकेट ऑफ वाटर। रिलीज द एयर इन द ड्रॉपर बाय प्रेसिंग इट। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द एयर बबल्स एज इट मूव्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर। भाई आपने क्या किया, एक ड्रॉपर लिया जिससे बच्चों को दवाई देते हैं, वो वाला ड्रॉपर लिया, उसको पानी में डाला और उसको ऊपर से प्रेस किया, उसमें से हवा रिलीज हुई। हवा रिलीज होने से क्या होगा, उसमें बबल्स उठेंगे पानी के। You will find that the size of the bubbles increases as they move towards the surface. This is due to decrease in the pressure applied by the water. तो ये तो आप क्या है, ड्रॉपर भी मत लीजिए, आप एक काम करिए कि उसमें बाथरूम में जाइए, बाथरूम में आप बकेट में पानी भरिएगा और मग्गे में पानी लीजिएगा अलग से और उसमें ज़ोर से पानी ऐसे करके डालिएगा। क्या होगा, बबल्स बनेंगे एयर के, और वो एयर के जो बबल्स हैं वो जब नीचे होंगे लिक्विड में तो छोटे होंगे, पर जैसे जैसे ऊपर आएंगे वो बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड दैट फ्लूइड्स exert pressure equally in all directions. This pressure exerted by fluids is called fluid pressure. तो liquids जो pressure apply करते हैं उनको हम बोलते हैं fluid pressure. The pressure exerted by fluids is the same at all points at the given level. The pressure inside a fluid increases with depth. जितना ज़्यादा आप गहराई में जाएंगे उतना ही ज़्यादा fluids अपना pressure आप पर apply करेंगे। अब हम बात करते हैं atmospheric pressure की। So the surface of the earth is surrounded by an envelope of air called atmosphere. हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास एयर है और जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। As all fluids exert pressure, so the atmosphere also exerts a pressure called atmospheric pressure. This pressure is exerted on an object due to the weight of the air column above it. We are experiencing this pressure all the time. हमारे ऊपर भी प्रेशर पड़ता रहता है, हमें महसूस नहीं होता, पर यस हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है एयर का। जो हमारे ऊपर एयर है, जो हमारे आसपास एयर है, वो हमें हर तरफ से प्रेशर डालती है। ओके, तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं, ये दो एक्टिविटीज़ आपके लिए हैं, इस एक्टिविटी को आप करिएगा। ओके, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर करिएगा। ओके, it is indeed amazing that we do not get crushed under the pressure of the atmosphere because our bodies get used to this pressure. तो आप बोलोगे कि मैम हम दबते क्यों नहीं है जब हम पर प्रेशर पड़ रहा है तो एटमॉस्फेयर का, क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू हो चुकी है, हमारी बॉडी को आदत है। दिस इज made possible by the internal pressure developed by the fluids inside the body cells of humans and other animals. इसका दूसरा एक रीज़न ये भी है कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, भाई हमारी बॉडी में भी वाटर है, ब्लड है, ये हमारी बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करते हैं इंटरनली, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्रश नहीं होती। जितना प्रेशर हमें ऊपर से लग रहा है इतने ही प्रेशर हमारे जो फ्लूइड्स हैं वो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्रश नहीं होते हैं। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स वन फील पॉपिंग इन द ईयर्स। आप जब कभी किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाओ तो कुछ ऐसे कानों में ना आपको महसूस होगा छोटी छोटी आवाज़ें, कुछ ऐसा लगेगा वियर्ड सा आपको कानों में।
दिस इज़ ड्यू टू रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप बहुत ऊंचाई पर जाते हो तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। द पॉपिंग हेल्प्स टू बैलेंस द डिफरेंस इन प्रेशर इन एंड आउटसाइड द बॉडी। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अगर आपको नापना है कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है तो आप इसको मेज़र कर सकते हैं बैरोमीटर से। There are two types of barometers, mercury barometers and aneroid barometer. Okay? तो देखिएगा ये दोनों बैरोमीटर आप YouTube पर के कैसे होते हैं। Now consequences of atmospheric pressure. Some people experience nose bleeding at higher altitudes. It is because the pressure of the air inside their bodies is more than the atmospheric pressure. ऐसा क्या होता है कि जब आप बहुत ऊंचाई वाली जगह पर जाओ, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर जाओ, तो आपकी नाक से ना ब्लड निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई हमारी बॉडी भी तो अंदर से प्रेशर लगा रही है और ऊपर से भी हम पर प्रेशर पड़ रहा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में तो सही है, नॉर्मल एल्टीट्यूड में तो ये सही है जिसमें हम हैं, पर जब आप ऊंचाई वाली जगह पर जाओगे तो ऊपर का प्रेशर तो हो गया कम, भाई हवा कम है तो प्रेशर कम है, पर हमारी बॉडी का प्रेशर उतना ही है जिसकी वजह से हमें नोज ब्लीडिंग महसूस होती है। द फाउंटेन पेन्स लीक एट हाई ऑल्टीट्यूड। The ink inside the pen has higher pressure as compared to lower atmospheric pressure. तो सेम होता है पेन के साथ, पेन भी लीक करने लगता है। पेन क्यों लीक करने लगता है? क्योंकि भाई जब आप ऊंचाई वाली जगह पर जाते हो तो पेन के अंदर इंक भी प्रेशर लगा रही है और एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है और इंक का प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से वो पेन लीक कर जाता है। अब ये दो एक्टिविटी आप खुद करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा रिलेट करने में मदद मिलेगी। देखिए साइंस में जब तक आप खुद चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे, खुद कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। मैं आपको सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन कर दूं और आप खुद चीज़ों को ना रिलेट करें तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। इसीलिए दो एक्टिविटी देखिए मैंने करा दी, इन दो एक्टिविटीज़ को आप करिएगा तभी आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी एक्टिविटी में डाउट है, किसी भी एग्जाम्पल में डाउट है, तो यू कैन सेंड योर डाउट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, वी कैन डिस्कस योर डाउट ऑन दैट ग्रुप। ओके, तो नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज द एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।